He was young, he was a dreamer, he was idealistic, and he was an honest human being with little patience for incompetence, dishonesty, or political trickery. He dreamt for India, he envisioned for India, he was a young leader of an ancient nation, and even during a short period of 5 years, he gave to India the momentum that none before him or after him could do. On the internal front, his boldness and non-partisan vision brought a closure of a long-standing and festering sectarian insurgency. The Mizoram, Assam, Punjab Accords, statehood to Arunachal, Goa, and Mizoram are those turning points in contemporary Indian political history that largely remain unnoticed. Even important were his interventions that India benefits from as a routine entitlement. The Navodaya Vidyalayas, voting age of 18 years, the three-language formula, the anti-defection law, telephones, computers, high-speed railway in form of Shatabdis are things which we take as given today. Yet, it was the idealistic, youthful commitment of a young prime minister that converted these into reality. Above all, and the most momentous, far-reaching endeavor of Rajiv Ji was his attempt to democratize India and take powers of decision-making to the grassroots through the Panchayati Raj Amendment Acts, as envisioned by Mahatma Gandhi in his conception of Gram Swaraj. Our founding fathers gave us a parliamentary democracy based on Westminster's model. Rajiv Ji advanced it manifold and tried to give India and its people the most empowering grassroots democracy as existed in ancient India through empowered Gram Sabha, Gram Panchayats, block samitis and Zilla Parishads in rural areas, and Nagar Palika, Parishads and Nigams in the urban areas. Moreover, one-third reservation for women not only empowered them, but also made this legislation one of its kind in the world. But unfortunately, he was opposed tooth and nail in this exercise by the vested interests and intermediary power centers. Various bogies, including that of federalism, were raised. Powers going into the hands of elected accountable representatives of people was opposed vehemently by the bureaucracy that was used to be the baobab of the people. Even as the Lok Sabha passed the Constitution Amendment Bill, it was defeated in the Rajya Sabha narrowly. And it was on this issue that Rajiv Ji recommended the dissolution of Lok Sabha and called for elections. What followed with Rajiv Ji is a tragic history, but the Constitution Amendments 73rd and 74th could finally be carried out in 1993 with the Congress government of P.V. Narasimha Rao Ji as Prime Minister. The amendment thus brought out was a fulfillment of Rajiv Ji's dream, but various factors had diluted the spirit behind the exercise. In a way, the launch of this YouTube channel, INC TV Today, is an exercise in line with Rajiv Ji's vision. It is meant to democratize information dissemination. It seeks to remove the supremacy of vested interests over information to suit the interests of a particular section. Congress will work towards strengthening Indian democracy and ensuring accountability from those in power. Jai Hind. Thank you very much. Thank you, sir. I would now request you to play the film. जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि यह है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। यही हम भी करना चाहते हैं। इस ऐलान के साथ हुआ पंचायती राज का सपना साकार। इस ऐलान के साथ मिला गंवई गांव की माटी को उसका अधिकार। देश के लाल ने सच किया गांधी के ग्राम स्वराज का सपना। हर हिंदुस्तानी को हक दिया भाग्य विधान, बदलने लगी तकदीर।
Thank you. Thank you, Makan sir. I would now request our senior leader, Sri Pawan Kumar Bansal ji, to say a few words on the occasion and release the showreel of INC TV. श्री वेणुगोपाल जी, श्री अजय माकन जी, श्री पवन खेड़ा जी, श्री श्रीनिवासन जी, श्री प्रणब झा जी व कम्युनिकेशंस टीम के सभी सदस्यगण, प्रणब झा जी, मीडिया के सभी साथियों, दोस्तों, आज सचमुच प्रसन्नता का दिवस है कि कांग्रेस की तरफ से एक वेब टीवी INC टीवी के नाम पे आज लॉन्च हो रही है। जैसे मेरे से पहले कहा गया, एक शुभ दिन है आज श्री राजीव गांधी जी की याद में, जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम देश के लिए उठाए, देश को एक नया दुनिया भर में इज्जत दी। उस पे आज उनके नाम पे हम आज इसको शुरुआत इसकी कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि एक जो कमी महसूस आज हम मीडिया स्पेस में देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस की तरफ से एक ये प्रयास है कि जो एक डेमोक्रेटिक टेम्पर आज गायब हो चुका है हमारे डिस्कोर्स से, उसको फिर वापस लाया जाए। जो प्रहार हो रहा है इंस्टीट्यूशंस पे सरकार की तरफ से, उसके मुकाबले में सामने खड़ा होके फिर हम उन परंपराओं को, उन मान्यताओं को, उन वैल्यूज को फिर रीअसर्ट करने के लिए काम करें। इसके लिए आज प्रस्तुत की जा रही है, लॉन्च की जा रही है। और इसके साथ मुझे निजी तौर पे कुछ संतोष, कुछ प्रसन्नता इस बात पे है कि पिछले समय में एक प्रोग्राम सच्चाई पे चर्चा कुछ हम लोगों ने यहाँ गांव में की थी, कामयाब हुई थी। और आज जो देश में माहौल पिछले 7 वर्षों से बना हुआ है कि एक शून्य काल छाया हुआ है, जबकि किसी ढंग का कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ एक मीडिया एक्सरसाइज हो रही है, एक अपने आप का एक स्वयं प्रचार के अलावा सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं हो रहा। उस वक्त एक कंस्ट्रक्टिव, एक अच्छे पॉजिटिव ढंग से लोगों के सामने व्यूज पहुंच पाए, ये कांग्रेस ने अपने जिम्मे लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय के साथ एक लोकप्रियता बहुत ऊंचे स्तर पे हासिल करेगी और अच्छी सही खबरें देते हुए, अपना हम व्यू पॉइंट देते हुए, औरों के साथ चर्चा में उनको लेते हुए, हम जैसे कि कांग्रेस की परंपरा रही है, एक पॉलिटिकल स्पेस में, पब्लिक स्पेस में ऑपरेट करने की, उसके हिसाब से ये चैनल, ये एक वेब टीवी उसमें और बहुत बड़ा सहाय होगी और एक बहुत बड़ा कांग्रेस की तरफ से विचार रखने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म लोगों का उसको सामने लेके आएगी। इन शब्दों के साथ मैं सभी को जो इनके साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काम किया है पिछले काफी समय में, इसको आज साकार करने के लिए उनको मैं बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने व्हाट्सएप वीडियो पे अपने शो रील को प्ले करें। धन्यवाद सर। तो ये जो आपने शो रील देखा, ये हमारे कुछ प्रोग्राम हैं जो आपको नियमित दिखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये परिचर्चा, ये खबरों, जो आमतौर पर वो चीजें जो आपको टेलीविजन पर
नहीं देखने को मिलती हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चलूंगा अपने सोशल मीडिया चेयरमैन मित्र श्री रोहन गुप्ता जी के पास। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन वार के दौर में जहां झूठ को रोज सच बनाकर फैलाया जाता है, ऐसे में वो क्या भूमिका देखते हैं और कैसे वो इसमें तारतम्य स्थापित करेंगे। रोहन जी। नमस्कार साथियों, आदरणीय वेणुगोपाल जी, पवन बंसल जी, अजय माकन जी, पवन खेरा जी, प्रणव झा जी, श्रीनिवासन जी और मेरे सारे पत्रकार साथी मित्र, आज मुझे लगता है कि लोकतंत्र की रक्षा की जो मुहिम है कांग्रेस पार्टी की, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि 7 साल से जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का, हर रोज हत्या करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं देखा जाता है। साथियों, कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मीडिया के एक तबके का उपयोग करके झूठ को सच साबित करने का एक प्रोपेगेंडा हम सब देखते हैं। हर साथी को मालूम है कि ये प्रोपेगेंडा है, हर साथी को मालूम है कि झूठ है, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मनी पावर, मसल पावर के द्वारा सच को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक विपक्ष के नाते, जिम्मेदार विपक्ष के नाते, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रोपेगेंडा को रोका जाए, तभी हम देश को बचा पाएंगे। आज अभी जैसे वेणुगोपाल जी ने बताया, जिस प्रकार से ऑक्सीजन की सिचुएशन है देश में, जिस प्रकार से कोविड की सिचुएशन है, ये कोई भी भारतीय नहीं देख पा रहा है। हर भारतीय परेशान है, हर भारतीय को मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है। तब हम सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम सच को देश की जनता तक पहुंचाया जाए। सच के माध्यम से ही आज जो भी पार्टी या जो भी आदमी सत्ता में है, उसके ऊपर एक प्रेशर बनेगा परफॉर्म करने के लिए, सच के साथ चल के देश की जनता के लिए कुछ करने के लिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पत्रकार को हमेशा सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। सच बोलना, सच लिखना और सच जनता तक फैलाना, ये तीनों चीज महत्वपूर्ण है। सिर्फ सच लिखने से कुछ नहीं होगा, सच बोलने से नहीं होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि सच को जनता तक पहुंचाना। मुझे लगता है कि आज का जो ये महत्वपूर्ण दिन है आईएनसी टीवी के जो लॉन्चिंग का, मुझे लगता है कि सच जनता तक पहुंचाने में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जैसे अभी प्रणव झा जी ने दिखाया जो कार्यक्रम है, और आज सोशल मीडिया के चेयरमैन के माध्यम होने के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का रोल जब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हम सब देख रहे हैं कि यही सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके आज जो लोग सत्ता में आए हैं, आज वही लोग सोशल मीडिया से डर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी के एक सोल्जर के नाते कि यही सोशल मीडिया के माध्यम से सच हर घर तक पहुंचाया जाएगा। आईएनसी टीवी का जो प्रोडक्शन है, जो कार्यक्रम है, जो सच है, वो हर घर तक पहुंचे हमारे सोशल मीडिया वॉरियर द्वारा। ये कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और आज आईएनसी की टीम ने, पूरी टीम ने, कम्युनिकेशन की टीम हो, सोशल मीडिया की टीम हो, पूरी टीम दिन रात मेहनत करके, हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से सच जनता तक पहुंचे। आज जिस प्रकार के वीडियो साथियों आ रहे हैं, हर पत्रकार साथी यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, दिल से आहत है। हम सब जानते हैं कि गलत हो रहा है, पर हम क्यों जोर से नहीं बोल सकते? हम क्यों जोर से? ये हमारी जिम्मेदारी, हमको हमारा देश बचाना। आज 3.5 लाख के करीब पूरे देश में केस हैं कोविड के, 2-2.5 हजार से ज्यादा लोग मरे। हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हर परिवार तक कोरोना पहुंच चुका है, फिर भी अगर सरकार भाषण करने की हिम्मत करती है, कहीं ना कहीं हमको उनको जवाबदेही करवानी पड़ेगी। और आज इस माध्यम से, आईएनसी टीवी के माध्यम से एक शुरुआत हो रही है, और सोशल मीडिया के चेयरमैन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि इस सच को हर घर तक, हर युवा तक, हर भारतीय तक पहुंचाया जाए, जिससे जो हुक्मरान है उनके ऊपर प्रेशर हो। नहीं, हमको कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ लफ्बाजी से नहीं चलेगा, हमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये मुहिम लोकतंत्र को बचाने की है, यह मुहिम देश को बचाने की है, ये मुहिम हम सब मिलकर लड़ेंगे। और मैं आप पत्रकार साथियों को भी कहना चाहूंगा, कई साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, श्रीनिवास जी भी यहाँ पे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी सच जनता तक पहुंचाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके समर्थन में खड़े हैं। जहां जहां आपकी बात सच होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम मिलकर, मुझे विश्वास है, हम हमारे लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। और आज के इस दिन, लोकतंत्र के दिन, जो एक पवित्र दिन है, तब मैं आईएनसी टीवी के लॉन्चिंग के इस अवसर पर पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म को और कैसे बड़ा करें, उस दिशा में हम मिलकर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन गुप्ता जी। मैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी का, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र जी का, मैं भूल गया था उनका नाम लेना। फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे संगठन महाप्रभारी श्री केसी वेणुगोपाल जी का और आदरणीय पवन कुमार बंसल जी का। इन्होंने आग्रह किया था कि इनकी मीटिंग से आगे ये जाना चाहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का।
Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you, sir. Many congratulations, sir. कैसे वेणुगोपाल सर? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हूँ। राइट ना, मैं तो अभी गोल्डन हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पे 25 लोगों की मौत हो गई है सर। ओके। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे 25 लोगों की मौत हो गई सर। ओहो। अभी हम इस अगले खंड में प्रेस वार्ता शुरू करेंगे। मैं अजय जी इज मीटिंग यू एनीवे। जी सर, he will start the press conference. Sir, I'm handing over the proceedings to you. You please start the press conference, sir. सभी हमारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में जितनी हेल्पलेसनेस, बेबसी और लाचारी महसूस हो रही है, शायद उतनी जिंदगी में कभी भी नहीं हुई। कोई ऐसा घंटा नहीं जाता 1 घंटे के अंदर जब हमारे किसी जानने वाले का, किसी मीडिया के साथी का, किसी रिश्तेदार का, किसी पॉलिटिकल दोस्त का, साथी का फोन ना आ जाए कि हॉस्पिटल चाहिए, ब्लड प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और हद तो तब हो जाती है जब लोग सिफारिश करते हैं, जो आज तक के कभी भी जिंदगी में ऐसी सिफारिश नहीं आती कि संस्कार करना है और संस्कार के लिए 2 दिन की वेटिंग है, हमारे को संस्कार जल्दी करवा दीजिए, हमारा नंबर जल्दी शमशान घाट में जो केयर टेकर है उसे कह करके जल्दी करा दीजिए। ऐसी सिफारिशें, ऐसे हालात हमारे देश के अंदर पैदा हुए हैं कि बहुत बहुत दुख होता है कि आज हम लोग राजनीति में रह करके भी हम किसी की भी कुछ भी मदद हम लोग चाह करके भी नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर एक दिन में 3.5 लाख केसेस हो रहे हैं, लगभग 1,65,00,000 से ज्यादा कुल केसेस हो चुके हैं। 2,500 केस हमारे देश के अंदर एक दिन के अंदर लोगों की मृत्यु हो रही है। कुल जो है हमारे 1,88,000 के करीब लोग मृत्यु को पा चुके हैं हमारे कोविड की वजह से। और ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये केवल प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं है। दुख की बात ये है कि अब जो ये बातें हो रही हैं, ये जो चीजें हो रही हैं, इसके अंदर प्राकृतिक आपदा के साथ शायद सरकार की नाकामयाबी, सरकार की सोच और सरकार का अहंकार, ये सब के सब चीजें शायद इसके पीछे कारण है जो कि अब हो रहा है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के अंदर और हमारे AICC की जो YouTube चैनल जो लॉन्च हो रहा है, इस अवसर पर मैं आज सबसे पहले हमारे 190 पेज का 123वां रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का है, इसको आप सब लोगों के सामने इसके मुख्य अंश केवल 2-3 जगह की मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब बातें अगर मीडिया के माध्यम से समय रहते आ जाती है। 21 नवंबर 2020 को ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर चेयरमैन राज्यसभा को दी गई और फरवरी के अंदर ये पार्लियामेंट के टेबल पे रखी गई। लेकिन अगर समय पे, अगर ये फरवरी में ही मीडिया इसको उठा लेता, इस रिपोर्ट को अगर मीडिया सरकार के ऊपर रख करके उनको प्रेशर करता, तो शायद सरकार फरवरी में अगर चेंज जाती तो आज अप्रैल मई आते आते आज शायद जो है सरकार इसमें बेहतर स्थिति के अंदर होती। दुख की बात यह है कि मीडिया ने शायद इसको सही समय के ऊपर समय रहते हुए इसको अहमियत नहीं दी। ऐसी चीजों को बहुत सारी मीडिया जिसका काम होना चाहिए कि सरकार से प्रश्न पूछे, सरकार के ऊपर दबाव डाले, वो वापस सरकार की तारीफों में लगी रही, लिहाजा ये सारी की सारी चीजें खत्म हो गई, इसके ऊपर की कोई भी काम आगे नहीं कर पाया। ये 190 पेज की रिपोर्ट है, इसमें ऑक्सीजन शब्द 40 बार लिखे हुए। आज हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से हमारे एक साथी का भी फोन आया, वो कह रहे हैं कि 25 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से वहां पे हुई। कल गंगाराम के अंदर भी ऐसी खबरें आ रही थी, गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर भी 25 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। तो आज हमारे देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो जाए और समय रहते उनको चिताया गया। यही मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 190 पेज की रिपोर्ट में जहां पे ऑक्सीजन 40 बार मेंशन किया गया है, इसके अंदर समय रहते हुए हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को चिताया था बार बार कि आप इसको ठीक करिए, ठीक करिए, ठीक करिए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। और जो मीडिया को इस रिपोर्ट को लेकर के सरकार से प्रश्न पूछने चाहिए थे, वो नहीं पूछ पाए, जिसकी वजह से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कहां पे कोई भी कुछ कहता रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर पेज नंबर 27 पे पैरा 2.38 के अंदर
ये कहा गया है कि द कमेटी therefore strongly advocates National Pharmaceutical Pricing Authority to take appropriate measures for capping the price of oxygen cylinders so that availability as well as affordability of the oxygen cylinder is ensured in all the hospitals and medical consumption. The committee also recommends the government for encouraging adequate production of oxygen for ensuring its supply as per demand in the hospitals. मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पेज नंबर 27 के 2.38 पैरा के अंदर कमेटी की रिकमेंडेशन है. The committee also recommends the government for encouraging adequate production of oxygen for ensuring its supply as per demand in the hospitals. तो ये उस वक्त कहा गया, ये केवल एक जगह के ऊपर मेंशन. एक और जगह के ऊपर पेज 35 के ऊपर जो पैरा 2.72 है, उसमें कहा गया है the committee also recommends the ministry to ensure the adequate supply of oxygen cylinder with appropriate price caps. यानी बार बार जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से तो और कई जगह के ऊपर 40 जगह के ऊपर पूरे के पूरे रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सरकार को बार बार चिताया गया. यही नहीं, हमारे जो एम्पावर्ड ग्रुप जो भारत सरकार ने बनाया, इसमें एम्पावर्ड ग्रुप नंबर 6 के अंदर जो है उसने 1 अप्रैल को ही इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था. एम्पावर ग्रुप 6 ने 1 अप्रैल की मीटिंग के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत की अहमियत पे जोर दे दिया था और उस दिन केवल 2000 केसेस थे. आप अंदाजा करिए कि जिस दिन 2000 केसेस थे उस दिन सिर्फ उसी दिन जो है एम्पावर ग्रुप 6 ने कहा और उन्होंने आगे कहा कि इन कमिंग डेज, कोट करते हुए कह रहा हूं, मिनट्स के अंदर मेंशन है, इन कमिंग डेज इंडिया कुड फेस वास्ट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. ये 1 अप्रैल को 2020 को जो है उस वक्त जब एम्पावर ग्रुप की मीटिंग हुई तो अपनी दूसरी मीटिंग के अंदर ही उन्होंने कहा. उसके बाद ये DPIIT और CII और हेल्थ मिनिस्ट्री इनके झगड़े के अंदर ऐसा फंसा कि किसी ने भी इस तरफ में ध्यान नहीं दिया. आज जब ये स्थिति ऐसी है, दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट्स किस तरीके से उनकी डेथ्स हो रही है. पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 7200 मेट्रिक टन के लगभग है. इसके अंदर जो जरूरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी जो गवर्नमेंट ने कहा है देने के लिए, उसमें भी अगर 2600 मेट्रिक टन चले जाएं तो बाकी मात्र 4600 मेट्रिक टन बचते हैं. अब जितने भी ऑक्सीजन जो भी अलग अलग जगहों के ऊपर है, हमारे पास 50,000 मेट्रिक टन की स्टोरेज की कैपेसिटी अलग से हमारे यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन उनको किस तरीके से आगे पहुंचाया जाए उसका कोई इंतजाम अभी तक के नहीं हुआ है. अब जाकर के टाटा कह रहे हैं कि हम क्रायोजेनिक टैंकर्स को हम इंपोर्ट करेंगे. हैरानी की बात यह है कि अप्रैल में आकर के, अभी इसी अप्रैल के अंदर आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नाइट्रोजन कैरी करने वाले जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं उसको अब जाकर के रूल्स में फेरबदल करके इजाजत दी है कि वो ऑक्सीजन ले जा सकते हैं. तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? हमारी जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दोनों आपस में झगड़ रही. साथियों, मैं एक बहुत जरूरी आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं. अभी हाई कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के लिए 8 PSA यूनिट, जो कि PSA यूनिट जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन सिस्टम से जो ऑक्सीजन जनरेट होता है, हॉस्पिटल के अंदर ही वो ऑक्सीजन जनरेटर लग जाता है, दिल्ली के अंदर उन्होंने 8 सैंक्शन करे थे. उस 8 में से पिछले 1 साल में केवल 1 लगा और दिल्ली सरकार ने खुद अपनी तरफ से 1 भी नहीं लगाया. अब दिल्ली सरकार ने पिछले 1 साल में या केंद्र सरकार ने एक भी स्टोरेज का कैपेसिटी, कहीं पर भी स्टोरेज की कैपेसिटी ऑक्सीजन की उन्होंने नहीं बढ़ाई. अब मैं ये कहना चाहता हूं माननीय केजरीवाल जी को, जो कि छोटे नरेंद्र मोदी हैं, और माननीय मोदी साहब को जो बड़े मोदी जी, कि दोनों के दोनों आपस में झगड़ना बंद करें. जो 8 PSA यूनिट्स जो आपने सैंक्शन किया है वही लगाएं. और मैं इसके साथ में जोड़ करके ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में, और मुझे गर्व है ये कहते हुए क्योंकि मैं राजस्थान का प्रभारी हूं, हमारे राजस्थान में 37 डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पिछले 1 साल के अंदर PSA यूनिट सैंक्शन करेंगे. 37 और 37 में से 24 जगह के ऊपर लग गए हैं, शुरू हो गए हैं, और 13 बाकी के ऊपर एडवांस स्टेज के ऊपर है. तो जब हमारी सरकार राजस्थान में 37 लगा सकती है तो दिल्ली के अंदर केवल 1 लगा है, जबकि दिल्ली के अंदर जरूरत ज्यादा है. राजस्थान के अंदर 7 स्टोरेज, बड़े बड़े स्टोरेज प्लांट्स राजस्थान में हमारी सरकार ने पूरे के पूरे राजस्थान में 7 स्टोरेज टैंक्स प्लांट्स जो है, बड़े प्लांट्स लगाए हैं पूरे के पूरे राजस्थान में. दिल्ली में 1 भी नहीं लगा. तो दिल्ली जो
आपस के अंदर झगड़ते हैं कि इसमें हमारा शासन होना चाहिए, हमारा शासन होना चाहिए, कम से कम वहां पर लोगों की डेवलपमेंट के लिए तो आगे बढ़ करके आप काम करें। बाद में तय कर लीजिएगा कि एलजी शासन चलाए, मोदी जी शासन चलाए, अमित शाह शासन चलाए या केजरीवाल शासन चलाए। आज दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है, कम से कम दिल्ली के अंदर दोनों मिलकर के ऑक्सीजन तो सप्लाई करें। हमारी सरकारें, जब राज्य सरकारें 37 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर डिसेंट्रलाइज करके राजस्थान जैसी जगहों पे दूर दराज इलाकों के अंदर लगा सकती है, 7 स्टोरेज टैंक्स प्लांट्स हम लोग लगा सकते हैं, तो दिल्ली के अंदर एक भी स्टोरेज टैंक नहीं लगा सकते। 8 सैंक्शन करे हुए पीएसए यूनिट में से केवल एक दिल्ली के अंदर लगा है, बाकी और कोई भी नहीं लगा सकते। तो क्या केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों के दोनों जवाब देंगे इसके बारे में, आपस में लड़ करके झगड़ करके मीडिया के अंदर इस बात को करते रहेंगे कि दोनों के दोनों आपस में झगड़ रहे, एक दूसरे के ऊपर, दूसरे पहले के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा? तो मैं आज आप लोगों को केवल इतना कहना चाहूंगा, सच्चाई दिखाएं, वास्तविकता दिखाएं, दोनों सरकारों को बचाने में ना लगे। आज केजरीवाल साहब दिल्ली के अंदर जो एडवर्टीजमेंट जो देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछले वर्ष में 355 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च हुआ। इस वर्ष 467 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च होने का बजट रखा गया है, जो कि हर मिनट के बाद में यहां पे चैनल्स में आता है। 822 करोड़ रुपया केवल 2 वर्षों में इसके अंदर बजट सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसके लिए रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 822 करोड़ रुपए में से अगर सिर्फ ये ऑक्सीजन प्लांट्स में लगाते तो 800 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लग सकते थे, हॉस्पिटल्स के साथ में लग करके। और ये दिल्ली में अलाउड है। कोई लोग ये कहते हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल मना कर रहा है, ये सब चीजें बेकार की बातें। दिल्ली के अंदर जब 8 सैंक्शन करे केंद्र सरकार ने, जिसमें से 1 लग गया, तो 1 लग सकता है तो 800 भी लग सकते। तो ये जो है, कुछ लोग अब ये बहकाने के चक्कर के अंदर हैं, तो हॉस्पिटल के साथ में अटैच छोटे पीएसए प्लांट, जो कि जिसको प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट्स कहते हैं ऑक्सीजन के, वो लग सकते हैं दिल्ली के अंदर। और इससे अकेले सिर्फ जो प्रचार के अंदर खर्च किया है, अगर वो सिर्फ ऑक्सीजन बनाने में पैसा लगा देते तो 750 मेट्रिक टन की कैपेसिटी दिल्ली में होती, जो कि अब दिल्ली ना केवल अपने लिए काफी होती, बल्कि दिल्ली राजस्थान और हरियाणा और दूसरे और राज्यों को भी आगे बांट सकती थी, अगर दिल्ली के अंदर वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के जो पैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं उसकी जगह ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट्स लगा करके दिल्ली के अंदर सेटअप कर देते। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग, मीडिया के लोगों को, एडवर्टीजमेंट भी जरूरी है, हम मानते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट की जरूरत को देखते हुए कम से कम जो लोगों की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, उस चीज को बंद मत करें और लोगों तक सच्चाई आपको पहुंचानी चाहिए और सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जब आप सरकारों को कटघरे में खड़ा करेंगे तो सरकारों के ऊपर दबाव बनेगा, और जब दबाव बनेगा सरकारों के ऊपर तो अधिकारियों पे दबाव बनेगा, और जब इन सब पे दबाव बनेगा तो काम होगा और लोगों की मृत्यु इस प्रकार से दिल्ली में तड़पते हुए ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं होगी। इतना हम सिर्फ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी आपने साझा की। शासकों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी ही चाहिए। हम उम्मीद करते हैं जनता अपने शासकों से सवाल पूछेगी। मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं, कृपया एक एक करके अपने सवाल पूछें। हम इंतजार कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। प्रणव, ये टीवी चैनल जो आपने लॉन्च किया उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से तो पूछ सकते हैं। आप जवाब दीजिए इसमें प्रणव जी। मेरे ख्याल से इस विषय के ऊपर फिर कोई सवाल पहले अगर नहीं है तो फिर उसके बाद में टीवी के ऊपर आ जाता है। सुमोटो पे अगर सवाल हो तो पहले सुमोटो कर लेते हैं। नहीं है कोई तो इसको पवन जी, ये प्रणव जी आप ले लीजिए, और पवन जी भी हैं इसके ऊपर। जी उमा जी, मेरा ये सवाल था कि कांग्रेस ने अभी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। लोकतंत्र की काफी बात की है। छोटा सा सवाल है कि क्या जब आप अपने चैनल में परिचर्चा करेंगे तो क्या आप अपने विपक्ष के नेताओं को, यानी बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी जगह देंगे?
या सिर्फ ये कांग्रेस का माउथ पीस होगा? और दूसरा, जो कांग्रेस को लेकर बहुत सारी खबरें आती हैं उनकी सांगठनिक बातों को लेकर, कुछ कमियों को लेकर, उसके ऊपर भी चर्चा के लिए पत्रकारों को बुलाएगी जो इन बातों को लेकर मुखर रहते हैं? यही सवाल है। पवन जी जवाब देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा कि आपको सारी उम्मीदें विपक्ष से हैं। मैं बड़ा खुश तो होता ये सवाल अगर आप सत्ता पक्ष के जो मुखपत्र बने हुए हैं, तो आपसे ना उम्मीद हो जाए। नहीं, आपका स्वागत है। हमें तो बड़ी अच्छी बात लगी कि आपको हमसे उम्मीदें हैं, और उम्मीदें होनी भी चाहिए, हम ही से होनी चाहिए। पूरा देश अब यही सोच रहा है कि क्या गलती हो गई, तो ठीक है, आपकी बात सही है। बीजेपी की उम्मीद थी, अभी तो शुरू हुआ है। आगे देखिए, तथ्य और सत्य को सामने लाने की जिम्मेदारी हमारे मीडिया के बंधुओं की हमेशा रही है, और कई जगह हमें देखने को मिल रहा है कि जो रिश्ता सरकार और मीडिया का होना चाहिए, या जो रिश्ता मीडिया और विपक्ष का होना चाहिए, वो रिश्ता बिल्कुल चरमरा गया है, बिल्कुल बदल गया है। हमेशा अजय जी, और हम दिल्ली सरकार में अजय जी मंत्री थे तब, उनसे पूछिए आप कि कैसे रोज मीडिया हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था, और विपक्ष से उनका कैसा रिश्ता होता था उस वक्त के मीडिया का। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, यही तरीका होता था। लेकिन आज जो तरीका सब बदल दिया गया है, उसको बदलना बहुत जरूरी है, उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। आपको उम्मीद है कि हम अपने ही खिलाफ कुछ बोलेंगे? बहुत खूब। आपने आज तक, मुझे बड़ी खुशी होती अगर ये सवाल आप बाकी मीडिया से पूछते, बाकी चैनल से पूछते। अगर ये सवाल उस वक्त उठाया जाता तो शायद ये आवश्यकता नहीं होती कि हमें अपना चैनल लॉन्च करना पड़ता। दो चीजों में ये सरकार बहुत कुशल है और सक्रिय है, चुनाव प्रबंधन और मीडिया प्रबंधन। मुझे लगता है इन दोनों प्रबंधनों से उठकर अब देश को नेतृत्व की आवश्यकता है। प्रबंधक बहुत हो गए, हमें प्रबंधकों की आवश्यकता नहीं है, हमें नेतृत्व की आवश्यकता है। धन्यवाद पवन जी। और मैं इसमें सिर्फ यही जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी बात को व्यक्तिगत ना लें, क्योंकि आप लोग लगातार काम कर रहे हैं और जिम्मेवारी से अपनी कर्तव्य को निभा रहे हैं। रोज हम आपकी खबरें देखते हैं और विपक्ष को स्थान मिलता है आपकी खबरों में, और हम इसी समर्थन की मेरा एक सवाल है जी। जी मोहित जी, किससे सवाल है आपका? हेलो। हाँ हेलो जी, मेरा सवाल है। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, इस वक्त मैं दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में मौजूद हूं, और यहाँ पर अभी जो है ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंचा है। सवाल अब ये है कि लगातार यहाँ पर जो है अभी जो हाईकोर्ट में यहाँ के डायरेक्टर ने, यहाँ के अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी कि 25 लोगों की मौत हुई है, और अभी भी जो ऑक्सीजन ये पहुंचा है ये ज्यादा पर्याप्त नहीं है, ज्यादा समय वक्त के लिए नहीं है। तो ऐसे में ऐसे अस्पतालों के लिए जो है सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? वैसे तो मांग लगातार आप करते रहे, पूर्ति हुई नहीं अभी तक, तो आप लोग लगातार क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि बाहर आप देखिए जो परिजन है वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। देखिए, अभी जैसे मैंने कहा भी है कि ये बड़े दुख की बात है कि बार बार समय रहते हुए जो एम्पायर ग्रुप नंबर 6 है, जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इसने बार बार इस बात को उठाया कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसकी तैयारी करी जाए। अभी भी ऑक्सीजन की ट्रांसमिशन के जो है भरपूर इंतजाम नहीं हुए अभी तक के। साथ साथ में एकदम से जो है ट्रांसमिशन के इंतजाम, सिलेंडर्स की ज्यादा उपलब्धता होना, हमारे पीएसए यूनिट्स जहां जहां पे स्थापित कर सकते हैं, जो प्रेशराइज स्विंग एड्जॉर्प्शन सिस्टम है, जहां से लोकलाइज हो सकता है हॉस्पिटल के साथ में जोड़ना, और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, इसको एकदम से वॉर फुटिंग के ऊपर शुरू करना चाहिए। कल हम लोगों की कुछ हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स की स्टेट वाइज बात हुई, उनका एक ये भी आरोप है कि इसके अंदर जो पॉलिटिकल एक राजनीति इसके अंदर हो रही है, जो कि कोटा भी फिक्स किया गया है अलग अलग राज्यों के लिए। राजस्थान जैसे हमारा राज्य है जिसके अंदर जितनी गुजरात के अंदर संक्रमण है उतना ही राजस्थान में, लेकिन राजस्थान का कोटा गुजरात से बहुत कम है। 7वां 8वां हिस्सा है गुजरात के मुकाबले राजस्थान का हमारा कोटा। तो ये एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। केंद्र सरकार इस वक्त राजनीति के आधार के ऊपर कांग्रेस शासित या गैर भाजपा शासित प्रदेशों और भाजपा शासित प्रदेशों के बीच में आपस के अंदर भेदभाव नहीं कर सकता है, और सब जगह के ऊपर सिस्टम स्थापित होने चाहिए।
धन्यवाद सर। हाँ, ये प्रणाम लाल जी, से सवाल है मेरा। हाँ, ये जो कल जो मीटिंग हुई थी सीएम और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, उसके बाद जो जिस तरह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को एडमोनिश किया प्राइम मिनिस्टर ने, और जो चीज होना चाहिए था वो नहीं हुई मीटिंग से, वो जो एक फारसी का मकौला है निश्तन बर्खास्तन, यानी सिर्फ बातचीत हुई फॉर द पर्पज ऑफ मेयर टॉकिंग, कुछ हुआ नहीं उसमें, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे मैंने मेंशन किया कि हाई कोर्ट के अंदर जब हियरिंग हो रही थी, तो हाई कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने ये बताया कि 8 पीएसए यूनिट्स दिल्ली में सैंक्शन करे गए, जिसमें से केवल 1 दिल्ली में स्थापित हो पाया पिछले 1 साल में। और ये पिछले साल अप्रैल मई में फैसला हुआ, 8 महीने लग गए इनको टेंडर करने में, और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चे वाला नहीं है। 8 पीएसए यूनिट्स लगने के लिए मुश्किल से 8 से 10 करोड़ रुपया खर्च होता होगा। तो जब केंद्र सरकार ने सैंक्शन करे हुए दिल्ली के अंदर नहीं लगवा पाई, दिल्ली सरकार ने तो सैंक्शन भी एक भी नहीं किया। दिल्ली सरकार ने 822 करोड़ रुपया अपने खुद के एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार हमारे दिल्ली में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए एक भी स्टोरेज टैंक दिल्ली के अंदर, एक भी स्टोरेज टैंक, एक भी पीएसए यूनिट दिल्ली में स्थापित नहीं कर पाई। मैंने अभी हमारे राजस्थान का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर हम लोगों ने 37 हमने पीएसए यूनिट्स हम लोगों ने सैंक्शन करे, जिसमें से 24 लग भी गए हैं, 13 एडवांस स्टेज के ऊपर। हमारे वहां पर 7 बड़े स्टोरेज टैंक्स प्लांट्स हम लोगों ने वहां पर स्थापित कर दिया। तो जब हमारी सरकारें कर सकती हैं, हमारे को भी भेदभाव वहां पे हो रहा है। हमारे लिए भी वहां पर जो है, हमारे खुद के वहां पे हेल्थ मिनिस्टर ये कहते हैं कि राजस्थान को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा सेम संक्रमण है, कहीं ज्यादा उससे 7-8 गुना ज्यादा गुजरात को दिया जा रहा है। लेकिन उसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के अंदर तमाशा हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये तमाशा सिर्फ दोनों जानबूझ करके कर रहे हैं, इसलिए तमाशा कर रहे हैं ताकि असली वास्तविकता कहीं पर भी लोगों के बीच में ना जाए। चर्चा यही हो कि दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो झगड़ने को छोड़ करके दोनों इतना ही बता दें कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया है। बाद में उपराज्यपाल के हाथ में सारी पावर्स होनी चाहिए, या मुख्यमंत्री के पास में होनी चाहिए, या गृह मंत्री के पास होनी चाहिए, ये तय कर लें, लेकिन कम से कम अभी दिल्ली का तो भला करें। थैंक्स। थैंक यू सर। Samia, who wanted to ask a question? Sir, I wanted to ask you, while there is such large scale devastation that everybody is facing, the Supreme Court has chosen to hear the matter next week. Already yesterday, Abhishek Manu Singhvi had put out a stringent attack to say that Supreme Court's intervention was uncalled for when the Delhi High Court was doing its due. In this given circumstances, when the Supreme Court has decided to hear the matter next week, do you think this delay is in a sense criminal? Well, as far as the legal question is concerned, I think it was exhaustively replied by Abhishek Singhvi ji yesterday. So I wouldn't like to add anything to what Abhishek Singhvi has said yesterday on legal matters. But I would just like to add and repeat what I have said in Hindi, that it is so very unfortunate that when the High Court was hearing the oxygen shortage issue of Delhi, the central government informed the High Court that 8 PSA units, the pressure swing adsorption units, which is the localized oxygen generating units which is attached to a hospital, 8 such units were sanctioned for Delhi. Unfortunately, out of these 8 sanctioned units, only 1 unit could fructify. Only 1 unit could be set in Delhi. Whereas if you look at Rajasthan, in Rajasthan we have put up 37 such units. Out of 37, we sanctioned 37 units. Out of these 37 units, 24 have been functional. They are working fine, and 13 are at an advanced stage of functioning. Whereas we had also set up around 7 tankers, big oxygen tankers in Rajasthan. As far as Delhi is concerned, the central government had sanctioned 8 PSA units, out of which only 1 is functional. And Delhi government didn't even sanction a single PSA unit. They are yet to set up even a single storage tank facility, plant facility in Delhi. So it's so very unfortunate that instead of doing their bit, both the central and state government, they are putting blame on each other. And this is thus being done to divert the attention.
So this is the main thing which you all should carry and which you all should ask the state government and the central government as to what they have done as far as the improvement of oxygen supply is concerned. I have given you the example of Congress ruled Rajasthan, where we have sanctioned 37, out of which 24 is already functional, the PSA units which are providing oxygen to our district and sub-district level hospitals. We have set up already 7 storage plants. So why couldn't the Delhi do it? Why couldn't the Delhi government put up set up or sanction money for these plants, storage plants or PSA units? So this is something which is criminal. Supreme Court asking or pushing it for the next week, I don't know. I'm not well equipped legally to call it criminal or not. But what the Delhi government has done, what the central government has done, that is criminal. They have not spent even a single penny as far as the PSA unit in Delhi is concerned. Delhi government has not spent even a single penny. As far as storage facility is concerned, Delhi government has not spent even a single penny in increasing the storage capacity of oxygen in Delhi in last 1 year. So this is something which is criminal. Thank you, sir. कोई और सवाल हो तो पूछे. ये चैनल जो शुरू किया गया है, YouTube चैनल, जी, तो इसका फोकस क्या होगा सर? What will be the focus of the channel? Yeah, just it is a mere propaganda channel for the party, or it will work in the interest of the public to educate the people about what is happening in the country? Pawan ji? Pranav bhai, I think you should respond to this because you've been one of the architects of this idea. I think आप जवाब दे तो अच्छा है. अब्दुल भाई, प्राथमिक रूप से ये इंफॉर्मेशन YouTube चैनल है. एक ये सामान्य जो है वो GSM चैनल नहीं है, फ्री टू एयर नहीं है, ये इंटरनेट बेस्ड YouTube चैनल है. और खास करके वैसे खबरें जो इन दिनों या कहें पिछले 7 साल से गायब हैं, जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, जनता के जुड़े मुद्दे हैं, जिनको किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव की वजह से सरकार नहीं चलने देती, सामने नहीं आने देती, उन खबरों को हम जगह देंगे जिससे कि आम लोग अपने अधिकारों के बारे में जाने, अपने सरकारों की अकाउंटेबिलिटी तय करें. तो ये रन ऑफ द मिल चैनल नहीं है, ये एक खास पर्पस से कंसीव किया गया है. बहुत दिन से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी. कई लोगों ने हमें कहा था. ये संयोग है कि संयोजित होते होते अब ये हो पाया है और हमें उम्मीद है कि आप सबका समर्थन रहेगा हमें इसमें. थैंक्स. थैंक यू सर. भूपेंद्र नारायण सिंह जी भी 2 मिनट बता देंगे इसके बारे में. संपादक भूपेंद्र जी 2 मिनट इसके बारे में बता दें. भूपेंद्र जी हैं? I think sir वो drop हो गए हैं. संजीव सर, we have come to the end of question. अगर आपका परमिशन हो तो हम वाइंड अप करें कार्यक्रम को. Thank you very much माकन सर. Thank you very much पवन खेड़ा राजीव गांधी जी के ऊपर. मैं आग्रह करूंगा माकन जी से कि वो फिल्म को लॉन्च करने के पहले श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द राजीव गांधी जी के लिए कहें. Friends, Shri Rajiv Gandhi, the youngest Prime Minister of India, was forced to assume power after a tragic accident of history. He was young, he was a dreamer, he was idealistic, and he was an honest human being with little patience for incompetence, dishonesty, or political trickery. He dreamt for India, he envisioned for India, he was a young leader of an ancient nation, and even during a short period of 5 years, he gave to India the momentum that none before him or after him could do. On the internal front, his boldness and non-partisan vision brought a closure of a long-standing and festering sectarian insurgency. The Mizoram, Assam, Punjab Accords, statehood to Arunachal, Goa, and Mizoram are those turning points in contemporary Indian political history that largely remain unnoticed. Even important were his interventions that India benefits from as a routine entitlement. The Navodaya Vidyalayas, voting age of 18 years, the 3-language formula, the anti-defection law, telephones, computers, high-speed railway in form of Shatabdis are things which we take as given today. Yet,
It was the idealistic, youthful commitment of a young Prime Minister that converted these into reality. Above all, and the most momentous, far-reaching endeavor of Rajiv Ji was his attempt to democratize India and take powers of decision-making to the grassroots through the Panchayati Raj Amendment Acts, as envisioned by Mahatma Gandhi in his conception of Gram Swaraj. Our founding fathers gave us a parliamentary democracy based on Westminster's model. Rajiv Ji advanced it manyfold and tried to give India and its people the most empowering grassroots democracy as existed in ancient India through empowered Gram Sabha, Gram Panchayats, Block Samitis and Zilla Parishads in rural areas, and Nagar Palika, Parishads and Nigams in the urban areas. Moreover, 1/3 reservation for women not only empowered them, but also made this legislation one of its kind in the world. But unfortunately, he was opposed tooth and nail in this exercise by the vested interests and intermediary power centers. Various bogies, including that of federalism, were raised. Powers going into the hands of elected accountable representatives of people was opposed vehemently by the bureaucracy that was used to be the baobab of the people. Even as the Lok Sabha passed the Constitution Amendment Bill, it was defeated in the Rajya Sabha narrowly. And it was on this issue that Rajiv Ji recommended the dissolution of Lok Sabha and called for elections. What followed with Rajiv Ji is a tragic history, but the Constitution Amendments 73rd and 74th could finally be carried out in 1993 with the Congress government of P.V. Narasimha Rao Ji as Prime Minister. The amendment thus brought out was a fulfillment of Rajiv Ji's dream, but various factors had diluted the spirit behind the exercise. In a way, the launch of this YouTube channel, INC TV Today, is an exercise in line with Rajiv Ji's vision. It is meant to democratize information dissemination. It seeks to remove the supremacy of vested interests over information to suit the interests of a particular